Deep sir, can you hear me? Yeah, ma'am, I can hear you. Hello, am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. A very warm good morning to all of you. I, Kriti Srivastava, on behalf of Mechanical Engineering and Civil Engineering Department, once again welcome you all in the fourth lab session of this workshop on practical learning through virtual lab, jointly organized by Department of Mechanical Engineering and Civil Engineering by Institute of Engineering and Technology, Dr. Ram Mohan Lohia, Awadh University, Ayodhya. Now I will request Shweta to please introduce Deep Thakur Singh sir. Shweta, over to Good. you. Okay. Good morning to all. Today we have Deep Singh Thakur of RAC Banda with us as a speaker of this session. Currently, sir is working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering in RAC Banda. He has completed his MTech from IIT Patna and BTech from RGPV Bhopal. He is working on a project with grant of 10 lakh under the CRS scheme. Welcome, sir. Now over to you, sir. Okay, ma'am. Deep, So sir. I'm set. Yeah, ma'am. Yeah. So I'm sharing my screen. Okay. Is it visible? Yes, sir. Sir, Okay. no, sir. Yes, sir, it is visible. Your Microsoft Word is opening. Yeah. So Yes, these sir. are all the Yes. labs which is associated with theory of machine and mechanical vibration, which is available in our system. So basically, IIT Kharagpur and IIT Karnataka is leading. Right. So step by step, I will introduce. First of all, in the theory of machine, first we have mechanism. Right. So Okay, sir. mechanism lab is available in IIT Kharagpur as well as in NIT Karnataka. Here we have experiment on. First of all, in the IIT Kharagpur is a basic lab. Here only you have to identify the mechanism. But if you do want to do position and velocity analysis, we have to go for NIT Karnataka lab. In this lab, some of experiment you can do on mobile, but most of all it will require flash player. So you have to do it in the laptop, and you have to enable your flash player. Without it, it will not work. And you can just I will share this with all of you. You can just use control and click, and we can directly move on to that experiment. So this is the typical virtual lab. So I think somebody is using annotation. So here you can see when we go for mechanical engineering, as of you have already seen this, I think in earlier sessions, these are the available labs for mechanical engineering. In mechanical engineering, if we click for mechanism and robotics lab, if you click it, it will open. Here, everything is designed with the pedagogy. There is some set of outcomes which this lab want to do. So you will learn everything is designed with this pedagogy. Now in the introduction, they will show what is their objective, right? And then they will show list of experiment. Suppose I want to do an experiment on quick return mechanism. I will click it. Then in the introduction section, it will show what is the quick return mechanism. So जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम कोई भी मशीन्स पे काम करते हैं, जैसे सेपर मशीन हो गया, वी रिक्वायर मोर टाइम इन कटिंग, बट वी डोंट रिक्वायर कि जो रिटर्न टाइम है वो ज्यादा हो. सो देयर इज अ मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जिसको हम स्लॉटेड लीवर से भी कर सकते हैं, विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से भी ला सकते हैं, राइट. सो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी यूज दिस मैकेनिज्म, एंड इस मैकेनिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ मिलेगा. देन अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, सो हमें एनआईटी कर्नाटका के लैब में जाना पड़ेगा. वहाँ इसका पोजीशन एनालिसिस और वेलोसिटी एनालिसिस हमें मिल जाएगा. सो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे, डिजाइन क्या है. So first of all, in the introduction section, they will introduce the quick return mechanism. As we can read, quick return mechanism is a apparatus that converts the circular motion into reciprocating motion in a press and shaping machine.
which are used to save stock of metal into flat surfaces, right? Then after introducing it, we have to go through the theories. So what is the quick return mechanism? उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको जैसे आपका 4 बार मैकेनिज्म पता होगा, 4 बार मैकेनिज्म्स में हम इन्वर्जन लेके आएंगे तो हमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पता चलेगा, सिंगल प्राइस के अंदर हम इन्वर्जन्स लेके आएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स मिलेंगे, जैसे राइट। सो इन मैकेनिज्म्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इनको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें से हमारे पास क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स के लिए जो होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज द क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म? in the theory it will introduced, right? Now this is the fixed link and this is the crank and this is the slotted lever. It will move and this alpha angle is the cutting angle, return angle, and beta is the cutting angle. Now quick return ratio we all know is beta upon alpha. It is how much time is required to cutting stroke to return stroke. It should always be greater than 1. Now after introducing the crank and slotted lever mechanism, there is another Whitford quick return mechanism. It is also shown here. So we have to go theory by theory. After reading the theory, now we can see the video tutorials how it is working. Right, okay. So and it is pretty slow, so I will move on to next network. Sorry for the glitch. So can you see this video, ma'am? Sir. Is the video audible? Visible? Sir, your video is not visible. So that Microsoft Word is finished. Okay. Sorry. I think now it is visible, ma'am. Yes, sir, now it is visible. So I will go again. So this is the mechanical engineering lab which is available in virtual labs. Right here, if we go for mechanical and robotics lab, right here, this robotics lab, what is its purpose? It is shown here, and then this is the list of experiments which is available. So we were talking about the quick return mechanisms. So this is the quick return mechanism. I think it's visible, ma'am. पैसा ना लेते लो बाबू क्या मतलब? So this is the quick return mechanism which is used in shaper machines. So a quick video is available. It is taken from NPTEL, so you can find it in the reference section. Now again we go for the theory section. So quick return inversion of different is available. Right. Now we will go proceed for the procedure, what we require to do, right? So it shows what we need to do to obtain the outcome which is shown in the introduction section, right? So here it is only showing the working of the quick return mechanism, no other analysis. So it is very simple. In the simulator, a single slider crank mechanism is shown. We click to the mechanism and we will move the crank and see how the motion is coming on, right? So we will just rotate an angle and we will see that at the time of cutting we require more angle compared to at the time of return. Is the mechanism available, ma'am? Yes, sir, it is available. Yeah, okay. So this is the simple mechanism which is showing how quick return motion mechanism is working.
Again, if we want to see different mechanism like cam and follower, we have to click on the cam and follower. Then again, why cam is required? आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा आईसी इंजन्स में जो पहले वॉल बने होते थे कैम मैकेनिज्म से होते, तो कैम इज जनरली यूज्ड, जो हम जहाँ पे भी कैम यूज करते हैं अधिकतर वॉल टाइमिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए करते हैं, खासकर इंटरनल एंड एग्जॉस्ट वॉल में इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए, राइट। इसके अलावा इसका ऑटोमेशंस में बहुत ज्यादा यूज है, लाइक पेपर कटिंग मशीन, टेक्सटाइल मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स में, एंड हाउ इट्स वर्क, राइट। सो देयर इज अ कैम, यहाँ पे हम जिसको ऑफसेट भी कर सकते हैं, and this is a follower. There are different type of follower, knife edge, flat plate, roller, right? So a theory is available. We need to go through it and see every available followers, because follower की profile और cam की profile से हमें जो different velocities, positions, accelerations and jerk, ये चारों चीजें मिलती हैं, इनके एनालिसिस से ही कंट्रोल करके हम किसी वॉल टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसको प्रॉपर समझने के लिए आपको थ्योरी के थ्रू जाना होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसके कैम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या जरूरत होती है हमें। तो सबसे पहले हमें गाइड की जरूरत होती है, विदाउट इट द फॉलोअर विल नॉट हैव अ सिंगल मोशन, राइट। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिंगल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे गाइड लगाना होता है, बट बिकॉज दिस गाइड इज the surrounding, so this is a forced, right? Then spring, this spring is attached so that our follower always follow the cam, otherwise it will disconnect and motion will be not continuous. Then we have follower is follows the cam profiles. Then we have different shape of cams. Now we can go through the classifications of followers. Then why we require knife edge followers, the theory is available here. After going through this follower, we have to know what is the basic classification of follower, like base circle, trace point, pressure angle, pitch point, pitch circle, pitch curve, prime circle, and lift off stroke, right? So lift off stroke is total movement of this follower. Then prime circle, right? This is a base circle in which profile is set. Then we have pitch circle. It is a circle where all the action is taking on. Then there is a pitch point, then pitch curve, right? And then the actual cam profile. So after going through this, we go for the actual mechanism and see it on the lab, right? So how this cam actual seen? So this is a cam and this is a follower. As we move the rotation shaft, the follower moves according to the cam. Now this is a video, and same can be seen in the simulator. So here again, we have to move the joint from 0 to 360 degree, and we have to see how the motion along. Okay. So this is basically a simple mechanism which is showing how it is working, right? So I think this much is clear. So we will move on to next one, where we can actually analyze this one, right? This is just for introduction purpose, how mechanism actually works, to see and visualize how mechanism is seen and how it can work. So ये सिर्फ visualization purpose के लिए था. If you want to do analysis, we have to go for NIT Karnataka lab, because there they have shown different, right? So we will go for mechanics of machine lab. Mechanics of machine lab. In the mechanics of machine lab, here the introduction is given why this lab is developed. So this is their learning outcomes. Learning outcome is to know the mechanism, their velocity, kinetics, right?
So here every type of mechanism is shown, how 4-bar mechanism is work, their slider crank mechanism, Scotch yoke mechanism, elliptical tremor, right? Then step by step they introduce everything, what is machine, why require mechanism, different type of machine analysis, right? And then we will move on to every theory, and then we will understand about the links, what is the link, what is the rigid body, what is the flexible body, different type of links. And after understanding the links, right, so again we require for the link in the theory of machine, every element which has a relative motions can be classified as links, but for this link we require not required to be a rigid, but it should be resistant enough so that the power can be transmitted, right? So in the link section we have rigid body, then flexible body, and then fluid link. So there are 3 type of links, but again in the earlier mechanism, when we study the mechanics, we only study about the rigid body, right? In the higher, जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तब हम fluid mechanics की बात करते हैं. Otherwise we study in the first year itself is the mechanics. So in the mechanics we have studied about the rigid body behavior. What is the rigid body? So rigid body is like जब भी आप किसी भी बॉडी को मूव करते हो किसी पोजीशन से, तो एवरी पार्टिकल की पोजीशन रिमेन्स रहती है सेम, रिलेटिव पोजीशंस चेंज नहीं होती है उस बॉडी की, इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी. अगर इनके बीच की रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो जाए, सो इट विल नोन एज अ रेजिस्टिव बॉडी, not rigid body, right? So for our links can be rigid body, can be a resistive body, can be a fluid body, but the main purpose is to transmit the power transmit होना चाहिए. Again किसी space के अंदर जब भी हमारा mechanism work करता है, so we have a different frame, so we have go for the inertia frame, क्योंकि आपने mechanism पढ़ा होगा, जब भी हमें mass की analysis करना होता है we have to go for inertia frame. अब इस फ्रेम में हमें किसी पोजीशंस को लॉक करना है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में है, सो हमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मिलेंगे, सो अगेन अलग अलग ऑथर्स का यूज करेंगे, तो कभी पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स को इंडिपेंडेंट मोशन कहा जाता है, कभी कभी पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स को डिपेंडेंट मोशन कहा जाता है. सो एक्स मूवमेंट इज काउंटेड एज सिंगल, समटाइम्स इज काउंटेड एज डबल. अगेन जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे इंडिपेंडेंट माना जाता है, कई बार एंटी क्लॉक को इंडिपेंडेंट माना जाता है. सो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी 12 मिलते हैं, कभी 6 मिलते हैं, राइट? सो दे आर द सेम, बिकॉज आप जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 कह रहे हैं तब आप वहां पे जो मोशन है एक्स और नेगेटिव एक्स को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, बट जब आप उसे 6 काउंट कर रहे हैं तब आप उसे एक दूसरे से डिपेंडेंट मान रहे हैं, जिसको आप पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो रिक्वायर होंगे किसी की पोजीशन फिक्स करने के लिए, वेलोसिटी फिक्स करने के लिए और उसकी स्टेट डिफाइन करने के लिए, राइट? जब हम थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात करेंगे तो स्ट्रिक्टली थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम मोशंस की बात करते हैं, तो किसी की पोजीशन फिक्स करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट? देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस. जब हम किसी 2 लिंक्स को ज्वाइन करते हैं तो जॉइंट्स कहते हैं. ये जॉइंट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, राइट? पिन जॉइंट, स्लाइडर क्रैंक, डिफरेंट टाइप ऑफ, राइट? देन इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशंस हो और रिलेटिव मोशन इस तरह से हो कि इसको हम प्रेडिक्ट कर सके, तो ये काइनेमेटिक पेयर कहलाता है, राइट? अदरवाइज अनरिस्ट्रेंड चेन कहलाएगा, क्योंकि हम वहां मोशन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे एक के मूवमेंट के अलावा दूसरे के कारण. सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर, बिकॉज हम एक लिंक में मूवमेंट इनपुट देने के बाद दूसरे का आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगेन वी हैव 4-bar मैकेनिज्म. सो ग्रेसॉफ वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक इक्वेशंस दी थी, जब उन्होंने बताया था कि हमें जो नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए होगी वो इवन चाहिए होगा, बट इवन के साथ मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स 2 हो सकता है, बट 2 के साथ में हमें क्लोज लूप बनेगा तो एक सिंगल लिंक बन जाएगा. सो वी रिक्वायर मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स. सो ग्रेसॉफ का इसका 4-bar मैकेनिज्म आया था. अगेन उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया था कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का सम अगर रिमेनिंग 2 लिंक के सम से कम या बराबर हो तो हमें कंटिन्यूअस मोशन मिलेगा,
अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो हमें कंटिन्यूअस या सर्कुलर मिनिमम 1 सर्कुलर मोशन नहीं मिलेगा। सो मिनिमम 1 नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन लेने के लिए ग्रेसाफ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि S प्लस एल शॉर्टेस्ट। सो जो भी लिंक शॉर्टेस्ट होती है उसको हम शॉर्टेस्ट कहते हैं, whichever is the longest is longest and there other two, right? So इस क्राइटेरिया के तहत हम ये पता कर सकते हैं कि हमें रोटेशनल मोशन मिल रहा है या नहीं। सो जब अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है S plus L is greater than P plus Q, right? So here we can see the continuous motions, हमें सर्कुलर मोशन मिल रहा है। अगेन हमें जब इसको इन्वर्जन करना होगा, जब हमें प्रैक्टिकल में इसको मशीन की तरह यूज करना होगा तो हमें किसी लिंक को फिक्स करना होगा। जब भी हम किसी मैकेनिज्म के लिंक को फिक्स करते हैं तो उसको उसका इन्वर्जन कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक को फिक्स करने पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म मिलेगा, राइट? अगेन we will go for slider crank mechanism, then we have Scotch York mechanism, the double slider mechanism, elliptical tremor, right? So this is all the mechanism they are introduced. We have to see the theory, then we will go for the experiment. Suppose हम जो है ग्रेसाफ 4 बार मैकेनिज्म में पोजीशन एनालिसिस करना चाहते हैं, राइट? सो इस लैब में हमें सबसे पहले देखना होगा प्रीरिक्विजिट्स क्या जरूरत होती है हमें, कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि सबसे बेसिक लैब है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये देयर इज नो मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट्स, राइट? बट जैसे हम वाइब्रेशन या दूसरे जब लैब्स में जाएंगे, सो वी विल रिक्वायर इट। राइट नाउ अगेन मैं फिर से कहूंगा कि आपको Adobe फ्लैश प्लेयर का प्लगइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके कई एक्सपेरिमेंट रन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर Adobe फ्लैश प्लेयर। सो ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट है मोबाइल में रन नहीं कर पाएगा, खासकर ये वाली लैब। दूसरी लैब्स जैसे हमने इससे पहले देखी थी वो मोबाइल में रन कर जाएगी, जो IIT खड़गपुर की थी। बट NIT कर्नाटका, इसके लिए आपको फ्लैश प्लेयर इनेबल्ड मोबाइल चाहिए होगा, जो कि आजकल नहीं आता है। सो यू हैव टू गो फॉर डेस्कटॉप। नाउ अगेन will go. Now this is the learning objective, जो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सारा एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सारी पेडागोगी जो भी हम डिजिटली सीख रहे हैं इस कॉल्ड है पेडागोगी, और ये पेडागोगी डिपेंड करती है हमारी सिर्फ इस लर्निंग आउटकम के हिसाब से। सो फर्स्ट इसका पहला आउटकम है कि हमें जो है लोकेशन करना है सेंटर ऑफ gravity key of any given link in a Grasaf 4-bar mechanism. Determine the output link angle of a Grasaf 4-bar mechanism for any given crank angle. So किसी भी given crank angle जो हम चूज करेंगे वेरिएबल्स से, उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट निकालना होगा इस लिंक के एंगल का। देन हमें ट्रांसमिशन एंगल निकालना होगा। Then we have to synthesize the length of a Grasaf 4-bar mechanism for a given condition. So then first of all, what is the 4-bar mechanism? जो हमने पहले नॉर्मल इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले सबसे पहले जब लैब में इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उन्होंने डिजिट लिंक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि डिजिट लिंक क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है, ये कैसे मिलके मैकेनिज्म बनता है, राइट? सो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। उसके बाद में जब हम इसको असेंबल कर देंगे, इसको क्लोज चेन बना देंगे, तो हमें 4-बार मैकेनिज्म मिलेगा। जब इस 4-बार मैकेनिज्म को हम लिंक फिक्स कर देंगे तो हमें एक्चुअल जो मशीन्स मिलती है वो मिलेगी, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में फिगर पे। दिस वन। सो आप ये देख सकते हैं कि जब हम एक्चुअल में जब तक लिंक को फिक्स नहीं करते तब तक के हमें मैकेनिज्म नहीं मिलती, हमें मशीन नहीं मिलेगी। तो मशीन इस एक्चुअली मैकेनिज्म या मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है जो हम एक्चुअल प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। किसी भी चीज को प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हमें उसे ग्राउंड करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम फिक्स करना कहते हैं, राइट? सो आपने सुना होगा कि आप डिफरेंट लिंक फिक्स करके डिफरेंट आउटपुट पा सकते हैं, जिसको इन्वर्जन कहते हैं। राइट नाउ अगेन आफ्टर इंट्रोडक्शन अगेन जब हम पोजीशन एनालिसिस करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स है जो एक्सपेरिमेंट यूज करेगा। सो उसके लिए
So जब भी हम यूज करेंगे, so there are different variables, right? So उस variables को define करने के लिए से R1 is the radius, ओके तो O2 से O4, सो ये हमारी फिक्स लिंक है। इस फिक्स लिंक्स के जो भी डिस्टेंस है उसको हम R1 कह रहे हैं। अगेन जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है O2A, उसे हम R2 कह रहे हैं। देन AB लिंक है, उसे एडजेसेंट लिंक उसे हम R3 कह रहे हैं। एंड देन जो BO4 लिंक है उसे हम R4 कह रहे हैं। सो इनकी लेंथ को हम R1, R2, R3, R4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन जब आपका लिंक मोशन कर रही है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एंगल सस्टेन कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो θ2, θ3, θ4 के साथ में। ये क्योंकि हम अलग अलग लैब जाएंगे तो हो सकता है अनोटेशन अलग अलग हो, जैसे NIT कर्नाटका इज यूजेस R1, R2, R3, R4। हो सकता है कि कोई दूसरी लैब उसे L1, L2, L3, L4 से कह रहे, आपने मैं L1, L2, L3, L4 से नाम से पढ़ा हो सकता है θ2 को आपने गामा एंगल के नाम से पढ़ा हो। दैट्स व्हाई अनोटेशन इज, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट को चालू करने से पहले आपको अनोटेशंस जो भी यूज कर रहे हैं हम इसको जानना बहुत जरूरी है, राइट। देन व्हाट इज द ग्रेसहॉफ लॉ, वो बताया जाएगा। इन्वर्जन से जब हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, राइट। देन हम किस तरह से पोजीशंस निकाल सकते हैं 4 बार मैकेनिज्म्स की। यहाँ पे उसका इक्वेशंस दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। So here we are not they are not using instantaneous center method because for this it is a first lab. हम पोजीशन एनालिसिस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, so it is a first lab, right? So यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला नहीं मिलेगा अभी। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो आप या फिर ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। So again आप जब 4 बार मैकेनिज्म की वेक्टर लूप निकालेंगे, वेक्टर लूप से आपको इक्वेशंस मिलेगी, राइट। इसके बाद में आपको यहाँ प्रोसीजर, आपने जब थ्योरी पढ़ ली तो उसके बाद आपको प्रोसीजर पे जाना होगा कि हमें क्या करना है। सो हमारा एम है कि हमें पोजीशंस निकालना, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ 4 बार लिंकेज। इसको निकालने के लिए हमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए होंगे उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो हमारे पास अननोन θ3, θ4 है, गामा इज द ट्रांसमिशन एंगल। सो हम किस तरह से इसको निकालेंगे, यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी है, राइट। सो आपने थ्योरी ऑफ मशीन्स में जब बेसिक्स में आप जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, या फिर जो अभी नहीं पढ़े हैं। सो आफ्टर मैथमेटिकल एनालिसिस हम सिर्फ रिड्यूस वेरिएबल करते हैं, कुछ नहीं, हम इक्वेशंस जो पिछली यूज थी वेक्टर लूप्स के उसको सॉल्व करके वेरिएबल रिड्यूस करके लाते हैं, और वेरिएबल रिड्यूस करके हम इसको एंगल निकालते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव एंगल दोनों आ सकते हैं, क्योंकि tan की इसमें कई बार वैल्यू आती है। सो हमें इस इक्वेशंस को यूज करके एंगल निकालना होता है जो पॉसिबल एंगल होगा। अगेन जब हम एंगल्स निकाल लेते हैं सो हमें ट्रांसमिशन एंगल मिल जाता है। सो इसके बाद में हमने जब थ्योरी पढ़ी, प्रोसीजर पढ़ा, सो क्या हमें एक्सपेरिमेंट समझ में आया या नहीं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले करना होता है सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। सो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सर सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, ये कुछ छात्र जो है इस पे बार बार एनोनेट कर रहे हैं। जी जी। बेटा इस पे एक मैसेज आ रहा है, कौन कर रहा है? तो ऐसा काम आप लोग ना करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एनोनेट करना कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जो तुम लोग करके बार बार दिखा रहे हो, हैं? लिमिट में रखो बेटा। और सर एक काम करिए, ऊपर आप जहाँ पे स्क्रीन शेयर किए हैं उसके ऊपर लिख के आ रहा है यू आर शेयरिंग द स्क्रीन, जहाँ पे ग्रीन पैनल बन के आ रहा है ना सर। हाँ हाँ, इसमें जब आप लास्ट में जाएंगे तो एक व्यू मोर करके क्लिक करेंगे तो नीचे कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ओके, सो यू वांट मी टू डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, यस 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 यस, उसे कर दीजिए। तो बच्चे हम टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे यूज। ओके ओके ओके। So can I continue, sir? Sir, yes sir, yes sir, carry on sir. Okay sir, okay. So now there is a self evaluation test. So जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके बाद में आपको ये आ रहा है या नहीं, so आपको इस टेस्ट को सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा, राइट।
सो अगेन आप इसमें आंसर देंगे। अगर आपका आंसर गलत है कोई बात नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप 50% के ऊपर मोर करते हो तो ये आपको सिस्टम कहेगा कि आप या तो फिर से पढ़ के इसे दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप आगे जा सकते हैं। बट अगर आपका 50% से कम है तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आप थ्योरी फिर से पढ़ें। राइट। सो अगेन अगर आप सही जवाब देते हैं तो ये कहेगा कि आप सिमुलेटर में जाओ। अगर आपके जवाब 3 तक के सही है तो भी आपको कहेगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप सिमुलेटर में जा सकते हैं या वापस एक्सपेरिमेंट में जा सकते हैं। पर अगर आपका 3 के नीचे 3 से कम नंबर आए 5 में से, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप अगेन थ्योरीज पढ़ के आए और उसके बाद सिमुलेटर की ओर जाएं। राइट। सो अगेन जब हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो ने थ्योरी दिया है क्या हम वो थ्योरी को ग्रेस्प कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर हमें तब भी कुछ डाउट है तो हम अगेन थ्योरीज के सेक्शन से जाएंगे, फिर सेल्फ इवैल्यूएशन देंगे। सो कई लैब में क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन, बट सम लैब जो होती है उनके पास प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको दोबारा वही क्वेश्चन मिलेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ इसको मार्क्स की तरह ना देखें, नॉलेज की तरह देखें, क्योंकि आप अगर 2-3 बार अटेम्प्ट करेंगे तो यू कैन गॉट 5 आउट ऑफ 5। सो इससे बेटर है कि आप लोग क्या करें कि उसमें एक्चुअल में देखें कि आपको थ्योरी समझ में आ रही है या नहीं। सो अगेन आपको इसमें हमें जो है प्लगइन को ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ये नहीं दिखेगा। सो ये जो यहाँ पे ट्यूटोरियल है, ये टॉकिंग ट्यूटोरियल, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट में। इट विल एग्जैक्टली टेल यू कि व्हाट यू हैव टू डू। सो जैसे आपको बताया रहा है कि आप डिफरेंट लिंक जैसे R1 लिंक चेंज कर सकते हो। सो कंट्रोल, ये जो सबसे पहले ये वेरिएबल है और ये कंट्रोल है। यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट को पॉज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ से हम लिंक चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें लेंथ चेंज करना है R1 की, R2 की, R3, R4 की, या फिर जो हम क्रैंक रोटेशन दे रहे हैं ω2 इसकी स्पीड चेंज करना। सो जब हम ओपन, यहाँ पे 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन दिया उन्होंने, ओपन कॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ से आपको वेरिएबल जो पिछले फॉर्मूला उन्होंने थ्योरी सेक्शन में बताया था, उससे फॉर्मूला को कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको गामा एंगल बता रहे हैं हर पोजीशंस के लिए। तो जैसे जैसे आपका ω2 चेंज होते आ रहा है, वैसे वैसे आपका वो चेंज होते आ रहा है। राइट। ω2 इज अ स्पीड। नाउ अगेन राइट। सो अगेन जो ये एक्सपेरिमेंट है ये नॉन फ्लैश यूजर्स के लिए भी है, तो आप इसको मोबाइल, सिर्फ ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं R1 R2 पोजीशंस। राइट। सो अगेन जब तक कि ये ग्रेसॉफ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तक कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं। बट अगेन अगर हम इस तरह से करें कि ग्रेसॉफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमें कंटिन्यूस मोशन नहीं मिलेगा। सो कंटिन्यूस मोशन नहीं मिलेगा तो आपको जो भी यहाँ पे वेरिएबल इस तरह से चूज करना है कि आपका ग्रेसॉफ कंडीशन फुलफिल हो सके। अगेन आप जब थीटा को चेंज करोगे, सो ओपन कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज कॉन्फ़िगरेशन में आपको जैसे जैसे हम थीटा चेंज कर रहे हैं, राइट, θ2 इज द इनपुट जो हम दे रहे हैं। अगेन θ3 θ4 जो है मेजर कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस से हम गामा एंगल निकाल रहे हैं। अगेन R1 जो है ये फिक्स लिंक है जिसको ग्राउंडेड भी कहते हैं, और R2 जो है हमारा, ये हमारी इनपुट लिंक है जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं। राइट। सो यहाँ से इस तरह से आप थीटा एंगल चेंज करके 0 से 360 तक के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका
θ3 θ4 एंगल चेंज हो रहा है, किस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है, किस तरह से आपको ट्रांसमिशन एंगल मिल रहा है, राइट। अगेन आफ्टर दिस जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे, सो आपको असाइनमेंट्स जो हम टीचर्स के लिए ज्यादा यूजफुल होता है कि आपने जो पढ़ने के बाद क्या सीखा। सो यू हैव टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक लेंथ वेयर मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन आउटपुट लिंक इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, राइट। अगेन क्या इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमारा नॉलेज इनहेंस हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए हमें क्विज पे जाना होगा। राइट, दिस इज द पोस्ट असेसमेंट। जो सेल्फ इवैल्यूएशन है ये प्री असेसमेंट है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हमें प्री नॉलेज कितना है किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। और क्विज जो होता है ये पोस्ट एनालिसिस होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद में हमें उसके बारे में कितना आता है। राइट, अगेन जब भी किसी चीज को हमें पढ़ना है, सो देयर इज सम वीडियो रेफरेंस ऑफ एनपीटीईएल। सो एनपीटीईएल पे जितने डिफरेंट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है उसके रेफरेंस वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके, सो सॉरी गाइस, इसका नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, सो मैं वीडियो नहीं दिखा पाया। बट आप जब वीडियो सेक्शंस पे जाएंगे तो आपको इसका जो सामने सिमुलेशन अभी देखा था सिमुलेटर पे, सेम उसके जो वर्किंग वीडियोस है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसा हमने पिछले मैकेनिज्म वाले में देखा था कि जो हमें वीडियोस दिख रहा था जब हमने क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देखा था। अगेन इन्होंने जो कुछ भी कहाँ से लिया है, सो नॉर्टन्स की बुक, अधिकतर जो थ्योरी ऑफ मशीन्स में आपको रेफरेंस मिलेगा नॉर्टन्स का होगा। उसके बाद में एसएस रतन, राइट। उसके बाद में आपको वर्चुअल नहीं जाओ, तुम जाओ। हाँ तो जाओ, 10 मिनट रुको तो नहा लेंगे। नहीं तो बहुत राइट। सो अगेन इसको सीखने के बाद में आप चाहते हो कि ये लैब में डिटेल सही नहीं है या आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। राइट, यहाँ पे फीडबैक आप देके बता सकते हैं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या आप में कुछ चेंज करना चाहते हैं। राइट, सो यूजर फीडबैक के बाद में आप इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं और दे आर सफिशिएंट फीडबैक, सो जो एनआईटी कर्नाटका है वो अपनी लैब को चेंज करते रहता है। सो यू विल फाइंड कि एक्सपेरिमेंट में आपको जो कमी लग रही थी वो उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया, पूरा कर दिया है। राइट, सो दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर इनपुट्स। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म। नाउ अगर हम इसमें अगेन हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक्स का भी अवेलेबल है। राइट, डायनेमिक्स लैब जो अभी तक क्या हम काइनेमेटिक्स लैब देख रहे थे जहाँ पे हमने मैकेनिज्म की बात करी, उसके पोजीशन एनालिसिस की बात करी। आपने जैसे अभी पोजीशन देखा था, सेम इसी तरह वेलोसिटी होता है। राइट, एक्सेलेरेशन एनालिसिस इन्होंने डोम लैब के अंदर दिया है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन लैब के अंदर। अगेन यहाँ पे प्रीरिक्विजिट्स ये है कि हमें आपको डायनेमिक्स और वाइब्रेशंस के बारे में जनरली पता हो, और क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन्स इंट्रोडक्शन टू मशीन्स है तो इसके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपके पास में अडोब फ्लैश प्लेयर प्लगइन होना चाहिए। राइट, अगेन हम जाके देखेंगे, मान लीजिए हम वाइब्रेशन देखना चाहते हैं, सो हम जाते हैं वाइब्रेशंस में। सो जब भी आप वाइब्रेशंस में जाओगे सबसे पहले आपको थ्योरी सेक्शंस आएगा। यहाँ पे आपका सबसे पहला लर्निंग आउटकम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन है वो लर्निंग आउटकम के हिसाब से होता है। सारी पेडागॉजी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर होती है। सो इसमें जो मेन पर्पस है आपको इंट्रोड्यूस करने का कि व्हाट इज द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है, सिंपल वाइब्रेशन सिस्टम कैसे बनता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है। फिर जब वाइब्रेशन होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस में हम जब डैम्पिंग देते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन होता है, फ्री है, फोर्स्ड है। सो फ्री वाइब्रेशंस होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी, देन वी गो फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में फिर हमें डिफरेंट डैम्पिंग रेशो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। देन हमें स्टिफनेस फाइंड करना होगा, फिर क्रिटिकल डैम्पिंग निकालना होगा और आखिरी में डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालना होगा। राइट,
अगेन फिर इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि जैसे कि आपने जो कार होती है उसमें सस्पेंशन सिस्टम देखा होगा, दोनों साइड में वो पिलो लॉक से जॉइंट से अटैच्ड होता है और हमेशा ये वाइब्रेशन करता रहता है जब भी हम डंपिंग कुछ भी डंप होता है या आप किसी भी अनइवन सड़क के ऊपर जाते हैं। सो जब भी किसी भी एंड पे, दोनों एंड पे आपको कनेक्शन इस तरह से मिलेगा कि इसकी मूवमेंट फिक्स हो जाए। सो इसको हमें फिक्स्ड बीम की तरह देखना होगा और अगर इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी हो तो हम इसे, या फिर जॉइंट आपके एक लेटरल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बट लॉन्गिट्यूडल मोशन को अलाउ कर रहे हैं, तो आप उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान सकते हैं, राइट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम दोनों के आपके पास में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है। जैसा अभी हम फिक्स बीम में आए, इससे पहले आप जाएंगे तो वहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम भी है। तो जब भी हम फिक्स बीम के अंदर जा रहे हैं तो हमें फिक्स बीम क्या है सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया जाता है, बट उसके बाद में व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो हम जब किसी भी सिस्टम को विदाउट किसी फोर्स एक इनिशियल डिस्टर्बेंस देते हैं, उसके बाद में वो जिस फ्रीक्वेंसी से सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है या पीरियोडिक मोशंस करता है, उसे हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। Then again we have basic equation. This is for natural vibration because there is no damping. So mass into acceleration plus stiffness into position x equal to 0, right? So again under root k by m is known as natural frequency omega n. So जब k by m यहाँ रेशो लेके आएंगे तो ओमेगा n स्क्वायर बन जाता है। अगेन हमने जब सोम पढ़ा था, सोम में हमें पता होता है फिक्स बीम के लिए अगर हम स्टिफनेस बीम की निकाल के लेके आए तो वो 192 EI अपॉन LQ होता है। सो अगर हम बेंडिंग इक्वेशन सॉल्व करें, वहां से आप जैसा जहाँ से आपने स्लोप निकाला होगा उस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, सो आपको वहां से स्टिफनेस के बारे में पता होगा, राइट। सोम जिसने भी सोम पढ़ा होगा, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द स्टिफनेस। क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल लैब के अंदर स्टिफनेस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, जो भी है वो मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल मोम लैब है जो सोम और मैकेनिज्म का पार्ट है, वहां उस लैब के अंदर वहां पे स्टिफनेस से रिलेटेड मिलेगा, राइट। देन अगेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर हम फ्री वाइब्रेशन के बाद फोर्स वाइब्रेशन देखें तो अगेन वी आर नेक्स्ट टर्म जिसे हमें डैम्पिंग कहते हैं, डैम्पिंग अवेलेबल हो जाता है। सो जब डैम्पर आ जाता है तो कोई भी वाइब्रेशन सिस्टम तीन चीजों से कंसिस्ट करता है, जिसे हम इक्विवेलेंट सिंपल डायग्राम में दिखाने जैसे फ्री वाइडी डायग्राम होता है उसमें अगर रिप्रेजेंट करें, तो हमें मास, डैम्पर और स्टिफनेस तीन चीज में दिखाना होता है। अगेन जब फ्री होता है, फ्री सिस्टम होता है तो राइट साइड 0 होता है। अगर फोर्स सिस्टम होगा तो राइट साइड में जो अनबैलेंस फोर्स होगा, वो जो भी अनबैलेंस फोर्स है, यहाँ पे जब भी हम मास इनटू एक्सेलरेशन कर रहे हैं, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, सो वहां से हम अप्रोक्सीमेशन करके F इक्वल टू ma लेके आ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स के लिए। सो अगेन m इंटू एक्स डबल डॉट देखेंगे तो आपको ये इनर्शिया फोर्स दिखा रहा है, सी एक्स डॉट देखेंगे तो ये आपको डैम्पिंग फोर्स दिखा रहा है, के एक्स आप देखेंगे तो ये आपके पास में स्प्रिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। सो अगेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी सेम होता है, अंडर रूट के बाय एम। अगेन जीटा इज द डैम्पिंग रेशो विच इज सी अपॉन सी सी। सी सी इज द क्रिटिकल डैम्पिंग और सी जो हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है। सो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग कोफिशिएंट के रेशियो को हम जीटा कहते हैं, जीटा। ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम फोर्स वाइब्रेशन में जाए, सो यहाँ पे आपको फोर्स वाइब्रेशन में मिलेगा, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स जो भी होगा, जनरली आप जब भी पढ़ेंगे तो इसमें साइन या कॉस मोशन के बारे में अधिकतर पढ़ते हैं हम। आप जैसे बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आएगा जो उसमें वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस करता है। सिमिलरली वहां यहाँ पे आपको एफ अनबैलेंस के नाम से दिखेगा, अनबैलेंस फोर्स। अगेन अभी हम नेचुरल वाइब्रेशन की बात करते हैं। सो 48 EI, यहाँ हम फिक्स बीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ 192 EI अपॉन एल क्यूब आता है, स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, राइट। आप स्लोप के ऊपर ना जाए, दिस इज फॉर स्टिफनेस नॉट फॉर द स्लोप, राइट। सो इफ समबडी इज कंफ्यूजिंग अबाउट 48, आपने जो भी सोम में फॉर्मूले पढ़े थे या आप जो भी डिराइव करके लेके आए थे, वो डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप के लिए था। हम डिफ्लेक्शन और स्लोप से फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन अगर आप लेके आएंगे तो आपको स्टिफनेस मिलेगा। सो यहाँ पे फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन के लेके आओगे तो आपको
स्टिफनेस K मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज अ स्टिफनेस नॉट अ, सो कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग 48 या अलग अलग बोलते हैं जो डिफ्लेक्शन या स्लोप किससे कहते हैं, तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अगेन ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस है, इसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से या डिफरेंट मेथड से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x डबल डॉट है। सो हम इसको जब सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को तो हमें सॉल्यूशंस मिलेगा। तो सॉल्यूशंस मिल रहा है पोजीशन x के लिए, वो मिलेगा एक e की पावर माइनस जीटा ओमेगा टी, देन कॉस एंड साइन फंक्शन, बिकॉज आपको एक इमेजनरी कंपोनेंट भी मिलेगा, तो कॉस और ओमेगा जो है कॉस और साइन के कंपोनेंट में आएगा, एंड देन e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी, राइट। सो नॉर्मली आप जब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये सॉल्यूशंस मिल जाएगा एक्स टी। अगेन यहाँ पे जो ओमेगा डी दिख रहा है ये हमें डैम्पिंग होने के बाद में क्या फ्रीक्वेंसी बची डैम्पर के कारण, ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, राइट। अगेन ओमेगा डी जो होता है वो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। इसके बाद में हम प्रोसीजर पे जाएंगे, तो प्रोसीजर में आपको बताया जाएगा कि हमारा एम क्या था। सो सबसे पहला एम है हमें डैम्पिंग ऑफ द गिवन बीम निकालना। सो इस तरह का हमें सिमुलेटर मिलेगा, सिमुलेटर पे एक मास लगा होगा, इस मास की वैल्यू हम चूज कर सकते हैं यहाँ वेरिएबल से। अगेन ये जो फिक्स लिंक है इसके लेंथ जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, आई क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। ये इक्विवेलेंट वाइब्रेशन सिस्टम दिखा रहा है जो मास स्प्रिंग और डैम्पर से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये आपके टोटल फिक्स लेंथ दिखा रहा है, जहाँ पे फिक्स है इस लेंथ को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको यहाँ रिप्रेजेंट दिख रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मास की वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब वाइब्रेशंस में दो तरीके के जब हम एनालिसिस करते हैं, तो फर्स्ट होता है कि हम इस शाफ्ट को वेटलेस मानते हैं, दूसरा इसमें वेट कंसीडर करते हैं, तो उसका हम मास इक्विवेलेंट मास लेके आते हैं। तो करंटली यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन है ये आपका इसको वेटलेस मान के है कि हमने जो भी यहाँ पे शाफ्ट लिया है ये वेटलेस है। अगेन यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे होगा अगेन जब आप हम यहाँ वेरिएबल लेंगे उसके बाद में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, और अगर हमने डैम्पिंग रेशो लिया हुआ है तो कैसे ये डैम्पिंग हो रही है ये हमें दिखने लगेगा। दिस इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, किस तरह से हमारा वाइब्रेशन, अगर अंडर डैम्प सिस्टम है, अंडर डैम्प सिस्टम है तो धीरे धीरे हमारा जो वाइब्रेशन है वो डाई आउट होते आएगा। अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो हमें पीरियोडिक मोशन नहीं मिलेगा, मिनिमम टाइम में वो मीन वैल्यू पे आ जाएगा। अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम है सो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, वाइब्रेशंस और बढ़ जाए। सो जब हम अंडर डैम्प सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अंडर डैम्प सिस्टम में धीरे धीरे क्या होता है, ये सिस्टम डाई आउट करता है और ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल को फॉलो करता है। जो हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है लॉगरिथमिक होता है, इसलिए इसे हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहते हैं। और वो रेशो यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ साइकिल है जिससे कंप्लीट करने से पहले, जहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट कितना लास्ट हुआ है। So this is the logarithmic. So x1 is the, ये एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वाइब्रेशन का, xn इज द nth रिपीटेड साइकिल के बाद में जो nth हमारे पास साइकिल है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो xn कहलाएगा। जब हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दिखाना है कि हर एक साइकिल के बाद कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग हर एक साइकिल के बाद कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे डिक्रीमेंट रेशो। जब हम डिक्रीमेंट रेशो निकाल लेंगे देन अगेन वी हैव, यहाँ पे हमें यहाँ पे कितना है, फिर हम इसको चेक करेंगे कि हम वैल्यू सही बता रहे हैं गलत। फिर जब हम उसको निकाल लेंगे डेल्टा, तो हमें जीटा निकालना होगा। जीटा निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ 1/√1 + 2π डेल्टा का होल स्क्वायर, राइट। इसको निकालने के बाद में वो पूछेगा कि व्हाट इज द जीटा, फिर हम यहाँ पे जीटा बताएंगे, चेक करेंगे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी क्या वो सही है या गलत है। उसके बाद में जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम में जाओगे तो आपको वहाँ पे स्टिफनेस मिलेगी 48 EI/L3। जब हम फिक्स बीम में जाएंगे तो 192 EI/L3। जब हम कैंटिलीवर बीम में जाएंगे तो 3 EL/L3, राइट। स्टिफनेस जो कि आपका होगा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगेन जब हम
ये फॉर्मूले में यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्टिफनेस, तो हमें स्टिफनेस यहाँ पे कैलकुलेट करके इनपुट देना होगा, फिर चेक करना होगा कि सही है या गलत। जब हम स्टिफनेस निकाल लें देन वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। ओमेगा एन होता है अंडर रूट के बाय एम। मास हम चूंकि खुद यूज करते हैं, स्टिफनेस अगर हमें पता चल जाएगी तो हमें ओमेगा एन मिल जाएगा। फिर उसमें देखना होगा रेडियन पर सेकंड में या हर्ट्ज में है। अगर हर्ट्ज में है तो डिवाइडेड बाय 2 पाई करना होगा, अगर सिर्फ रेडियन में है तो हम अंडर रूट के बाय एम से काम चला देंगे। देन अगेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बाद हमें डैम्प फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो डैम्प फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, या फिर डैम्प फ्रीक्वेंसी पता है तो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट माइनस जीटा स्क्वायर। अगर हमें ओमेगा डी और जीटा पता है तो ओमेगा एन निकाल सकते हैं, ओमेगा एन पता है तो हम इससे मास निकाल सकते हैं, राइट। सो आप जो डिफरेंट वेरिएबल है आप या तो ओमेगा एन निकाल लीजिए, ओमेगा एन के बाद में आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। जब इक्विवेलेंट मास निकाला गया तो हमें क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट 2 अंडर रूट के एम से मिल जाएगा। जब हम उसमें जीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट निकल आएगा। सो जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमें फाइंड करना था डैम्पिंग कोफिशिएंट सी, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में जब हम यहाँ पे करेंगे, चेक करेंगे, देन वी विल फाइंड द रिजल्ट। उसके बाद में जो रिजल्ट होगा एक्चुअल और आपने जो इंटर किया था वो आपको दोनों पैरेलली मिल जाएगा, right? So this is the procedure how we have to follow. Now again we have to go for self assessment test. हम self assessment test में जाएंगे। again यहाँ पे हम देखेंगे बंद है यार। राइट। सो जब हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेंगे तो ये हमें कहेगा कि हम सिमुलेटर की ओर अब जा सकते हैं। सो हम सिमुलेटर पे जाएंगे, अगेन एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। सो सबसे पहले हमें चूज करना होगा व्हाट इज द मटेरियल। जो ये साफ्ट है इसका मटेरियल क्या है। मटेरियल से हमारी प्रॉपर्टी जो है यंग्स मॉड्यूलस वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख रही है डेंसिटी, इलास्टिसिटी, राइट, फॉर डिफरेंट मटेरियल। हम जैसे चूज करेंगे देन उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारा आई चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। देन अगेन वी कैन चूज दिस लेंथ, we can choose the damping ratio, we can choose the mass. again जब हम ये सारे वेरिएबल जो हमें सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर लेंगे, we can go for control and we can see the vibration, right. so this is our system. अब ये देखना है हमें कि ये कैसे चेंज कर रहा है। so यहाँ हमने जो मास चूज किया था, जो डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया उसके हिसाब से था, वो मास हमारा निकल के आया 121.43 kg। स्टिफनेस के जो है वो निकल आई। यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स जो था मटेरियल प्रॉपर्टी के कारण सी आ रहा है वो दिखता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिखता है। अगेन हम इसको यहाँ सिस्टम में देख सकते हैं। अगर मैं जीटा चेंज करूँ या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दूँ, सो आई कैन सी कि वाइब्रेशंस जो है एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ में उसका साइकिल टाइम भी चेंज हो रहा है, राइट। सो वी कैन सी कि हाउ अगर हमारा मास चेंज हो, कि किस तरह अगर हमारा मास चेंज हो तो किस तरह वाइब्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से चेंज होगा। और अगर हम डिक्रीमेंट रेशो को क्रिटिकल सीसी पे ले जाए तो आप देखेंगे कि मीन टाइम में विदाउट किसी वाइब्रेशंस के अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, राइट। सो उसके बाद में अगर हम लेंथ भी चेंज कर रहे हैं सो अगेन चेंज होते आएगा, राइट। सो हमने डैम्पिंग 0 कर दी तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जब सी 0 हो गया तो हमें जो भी वाइब्रेशन मिलेगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। ये जो साइकिल जिसका रिपीट कर रहा है पर सेकेंड में वो हमें बता देगा कि हमारा कितना यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, राइट। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा तो यहाँ हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा, पर हम जैसे जैसे डैम्पिंग रेशो बढ़ाते आएंगे तो हमें ये जो डिक्रीमेंट दिखते आएगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मिलते जाएगा, राइट। जैसे जैसे हम जीटा की वैल्यू बढ़ाते आएंगे हम देखेंगे कि ये डिक्रीमेंट बहुत कम टाइम में होते आ रहा है। और जैसे ही हम जीटा 1 की ओर चले आएंगे तो हम देखेंगे कि विदाउट एनी
रिपीटेड मोशन या बिना किसी साइक्लिक मोशन के हमारा जो है सिस्टम है वो सीधे मीन पोजीशन पे पहुंच गया है, राइट। सो ये सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए था। अगेन यू विल गो फॉर एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4। सो आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे आप जाते होंगे एक्सपेरिमेंट दिखता रहेगा। राइट, सो इस तरह से आप वाइब्रेशन सिस्टम को समझ सकते हैं। नाउ अगेन जब हम सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगेन देयर आर सम असाइनमेंट्स जो हमें करना होगा। इस असाइनमेंट करने के बाद में देन वी कैन गो फॉर द क्विज। क्विज हमें ये बताएगा कि क्या हम वहां पे जो चीज था वो सीख पाए या नहीं, या फिर अगेन वी रिक्वायर टू डू एक्सपेरिमेंट अगेन। हो सकता है कि आप कुछ चीज समझे हो जो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो चीज सही आ रही हो, बट डिफरेंट वेरिएबल आप उसको सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाए हो, सो यू कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अगेन। सो अगेन हम पोस्ट टेस्ट करेंगे। रेडियन पर सेकेंड 0.6 को स्क्वायर किया हमने तो 0.34 1 0.34 0.8 डिवाइड किया 0.25 मल्टीप्लाई 30, सो 37.5, सो 37.5 yeah. Again, so this we have to solve. So I am guessing a guess. Okay. So again, the experiment is complete. अगर हमारा experiment complete हो गया है, so अब हम लिंक ऑफ एक्सपेरिमेंट दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डिफरेंट है, ऑब्जर्वर का, रोटेटिंग अनबैलेंस मास का। अगेन सेम वी हैव टू गो थ्योरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, अगर बेस एक्साइटेशन हो क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंट। क्योंकि हम यहाँ फोर्स वाइब्रेशन में आ गए तो हमें यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स मिल रहा है रोटरी मोशन के कारण, m e ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, राइट। देन यहाँ पे स्टैटिक, हम जब स्टैटिक डिफ्लेक्शन और डायनेमिक डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हमें ये रेशो मिल जाता है x। अगेन देन वी विल सॉल्व एंड फाइंड द एंगल्स। The same procedure we have to follow. Again, in the variable sections, we have to give the variable like stiffness, mass and damping. क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो सिर्फ तीन ही चीज के उसके ऊपर होता है। ये वाइब्रेशन सिस्टम जो होता है इसमें तीन ही वेरिएबल्स होते हैं। अगेन राइट साइड में जो अनबैलेंस फोर्स है, वहां पे हम जो अनबैलेंस फोर्स है एम ई ओमेगा स्क्वायर, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे अनबैलेंस देंगे, कितना अनबैलेंस है और हमारी रोटेशनल स्पीड क्या है। उसके बाद में इससे हमें मिल जाएगा ओमेगा एन tan थीटा। देन अगेन वी विल सी द फोर्स वाइब्रेशन कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर था x, जो अभी हमने देखा था, जो हमें जब जो डायनेमिक डिफ्लेक्शन था और जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन था, उन दोनों का रेशो क्या है, वो मैग्नीफिकेशन फैक्टर दिखता है। जब रेजोनेंस होगा तो ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगा, अदरवाइज ये आपको वो मिलेगा, राइट। एंड क्रिटिकल डैम्प की तरफ आप जब जैसे पहुंचते जाओगे, सो मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू भी कम होती जाएगी। अगेन दिस इज द फेस एंगल। सो अगेन हम जो है वेरिएबल देंगे, उसके बाद में इसको रन करेंगे और हमें मैग्नीफिकेशन फैक्टर और फेस एंगल मिलते जाएगा। सो हम फोर्स वेरिएबल के डिफरेंट किस तरह से स्टिफनेस चेंज करके, मास चेंज करके और डैम्पिंग रेशो चेंज करके या अनबैलेंस फोर्स की वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है मैग्नीफिकेशन फैक्टर में, उसके ऊपर निकाल सकते हैं, राइट। सो क्रिटिकल सिस्टम जो आपको जो स्पाइक दिख रहा है ये तब प्राप्त होता है जब रेजोनेंस हो जाए। रेजोनेंस मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी या डैम्प फ्रीक्वेंसी ये आपकी मैच कर जाए जो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उससे। सो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वो होती है जिससे अनबैलेंस फोर्स वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। सो दिस इज द अवेलेबल इन द वाइब्रेशन सिस्टम। हमने वाइब्रेशंस के लिए देखा। अगेन आप इसमें फिर से फीडबैक दे सकते हैं लैब में कि आपको लगता है कि इस लैब में अच्छे से नहीं आया है, राइट। अगेन जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, उन्होंने भी वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेशन एंड अकॉस्टिक लैब बनाई है। वहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का फोर्स रिस्पॉन्स, फ्री रिस्पॉन्स, ट्री फ्लाइड सस्पेंशन सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम,
tuned vibration absorber, right? So impact test on cantilever model analysis, science sweep of base etc. different available है. सो एनआईटी कर्नाटक और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जिन्होंने इस पे बनाया हुआ है आपका वाइब्रेशंस के ऊपर. देन थ्योरी ऑफ मशीन्स में जो है मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट हमारे जो भी थे वो आईआईटी खड़गपुर जो बेसिक लैब है, देन एनआईटी कर्नाटका ने बनाया था. राइट. अगेन हम एनआईटी कर्नाटका की दूसरी लैब जाते हैं जो डायनेमिक ऑफ मशीन्स की लैब है. यहाँ पे आपको जो अवेलेबल एक्सपेरिमेंट है वो आपको डिफरेंट गवर्नर्स के हैं. राइट. हमें गवर्नर मिल जाएगा. देन यहाँ हम डायनेमिक एनालिसिस दे सकते हैं जो हमने साइडर-क्रैंक मैकेनिज्म का पहले हमने काइनेमेटिक एनालिसिस देखा था जहाँ पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस था. बट नाउ वी कैन सी द फोर्स एनालिसिस. सो डायनेमिक एनालिसिस ऑफ सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म यहाँ मिलेगा. 4 बार का डायनेमिक एनालिसिस इस लैब में अवेलेबल है. वी कैन सी द फ्लाईव्हील एंड वी कैन सी द बैलेंसिंग इन डिफरेंट मास सिस्टम. राइट. से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द कि किस तरीके से हमारा गवर्नर काम करता है. अगेन हम जब गवर्नर आएंगे तो यहाँ पे हमें एम मिलेगा. इस लैब का एम क्या है? राइट. सो इस लैब का एम है टू विजुअलाइज द वर्किंग एंड इफेक्ट ऑफ स्पीड चेंज. स्पीड चेंज का इम्पैक्ट किस तरह से करता है प्रोएल गवर्नर पे थ्रू सिमुलेशंस. अगेन वी हैव थ्योरी. दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसके हिसाब से हमारा सारा एक्सपेरिमेंट डिजाइन है. सो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोएल गवर्नर जिसमें जो आपके फ्लाई बॉल होता है, स्प्लिंडर होता है, लिंक होता है, आर्म होता है, डेड वेट होता है, स्लीव होता है. देन हमें इसकी वर्किंग समझना है कि किस तरह से वर्किंग होती है. देन इसकी हाइट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जब रोटेशनल स्पीड है जिससे शाफ्ट स्पीड पर रोटेट करनी होगी. देन अगर हम इस लिंक की लेंथ को चेंज कर दे, आर्म को चेंज कर दे या रोटेशनल स्पीड को चेंज कर दे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. या फिर हम मिनिमम या मैक्सिमम हाइट ऑफ गवर्नर रोटेशनल स्पीड निकाल पाए. सो किस स्पीड रेंज के बीच में ये काम करेगा जहाँ पे आपकी स्लीव मूवमेंट मिल पाएगी मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के बीच में. सो गवर्नर हमें फ्यूल कंट्रोल के लिए जरूरी होता है. जो आपने बड़े बड़े गाड़ियां होगी उसमें गवर्नर देखा होगा. गवर्नर क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन करने के लिए होता है, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के लिए. फ्लाईव्हील होता है इंटरनल फ्लक्चुएशंस के लिए. तो जब भी आप एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन जैसे कि स्पीड, जर्क जो भी आ रहा है, अगर जर्क को हमें मिनिमाइज करना है तो हम यूज करते हैं गवर्नर का. इसे हम आउटपुट शाफ्ट पे लगा देते हैं और इसका इनपुट जाता है फ्यूल कंट्रोल सिस्टम पे जहाँ से कार्बोरेटर जिसे हम कहते हैं जहाँ फ्यूल कंट्रोल होता है. तो हम मास या डिफरेंट स्लीव आर्म लेंथ के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वेलोसिटीज पे हमें कितना स्लीव मूवमेंट चाहिए और कितना फ्यूल इनपुट जाना चाहिए. स्लीव मूवमेंट के हिसाब से जितना स्लीव मूवमेंट होगा उसके हिसाब से वो कंट्रोल करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल जाना चाहिए इंजन के अंदर. तो जो भी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लाईव्हील के थ्रू. सो देयर इज द थ्योरी कि किस तरह से ये जनरली काम करता है. क्योंकि हमें वेरिएबल लोडेड आउटपुट को कंट्रोल करना होता है इसलिए हम गवर्नर का यूज करते हैं. ये फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है स्पीड वेरिएशंस में अलोंग द जो हमारी इनपुट शाफ्ट है आउटपुट शाफ्ट है. इनपुट शाफ्ट फॉर द गवर्नर एंड आउटपुट शाफ्ट फॉर द इंजन. नाउ दिस इज द क्योंकि हमने इसमें मास सिस्टम लगा के रखा है और इसमें हम कंट्रोलिंग फोर्स कुछ नहीं लगा रहे. तो यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग आ रहा है इसमें हमें दो तरह के फोर्स मिल रहे हैं, एक ग्रेविटी कंट्रोल, एक स्प्रिंग कंट्रोल जो हमारे रोटेशनल स्पीड के कारण. सो यहाँ पे हमें जो रोटेशनल स्पीड के कारण यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा जो उसको पोजीशन में रखेगा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसे पोजीशंस पे फिक्स कर रहा है. सो क्योंकि इसे वर्क करने में ग्रेविटी असिस्ट कर रही है इसलिए इसे हमें ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटी कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कहते हैं. बिकॉज अपनी पोजीशन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है. The centrifugal governor works on the principle of centrifugal force which gets applicable on the rotating balls. Again, हम इसकी फंक्शनिंग समझेंगे. Then there is the balls are known as fly ball.
क्योंकि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें इसके डिफरेंट पार्ट आइडेंटिफाई करना है, सो वी मस्ट नो कि डिफरेंट पार्ट क्या है। जैसे कि जो हमें ये दिख रहा है मास, इसे हम फ्लाई बॉल्स कहते हैं, विच आर अटैच्ड टू द स्प्रिंडल थ्रू लिंक्स। तो ये अटैच्ड है स्प्रिंडल पे विथ थ्रू आर्म्स, जैसे राइट, so that ball may rise up or fall down the revolve about the vertical axis. The arm are connected by the links to sleeve. ये जो स्लीव है इसमें आर्म से जो लिंक से अटैच है हमारे आर्म्स, which is key to the spindle. The sleeve revolves with the spindle. जो स्लीव है वो हमारा रिवॉल्व करता है विद द स्पिंडल बट कैन नॉट स्लाइड अप, बट ये क्या कर सकता है, स्लाइड अप एंड डाउन हो सकता है। So the ball and the sleeve rise when the spindle speed increases. जैसे स्पिंडल स्पीड बढ़ेगी ये अप मोशन उसका अप होगा, जैसे स्पीड डाउन होगी तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और इसी से अटैच हमारा कार्बोरेटर इनलेट होगा। तो जितना ये मूवमेंट अप होगा तो उस हिसाब से पेट्रोल सप्लाई कट कर देगा, जितना डाउन होगा उस हिसाब से पेट्रोल सप्लाई को ओपन कर देगा। राइट, नाउ द स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच बॉल, w इज द वेट ऑफ ईच बॉल, जिसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन में ला लेंगे। कैपिटल एम है जो सेंट्रल लोड है हमें उसका, r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। राइट, सो हियर वी कैन सी दिस इज द हाफ पोर्शन, इसका जो हाफ पोर्शन है सेंट्रल, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिक है दोनों साइड से, तो हम इसको रिड्यूस वेरिएबल मेथड के तहत इसका सिर्फ हाफ एनालिसिस देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोनों तरफ का चीज मिल जाएगा। राइट, सो हम ये जो एक्सिस है गवर्नर एक्सिस, इसके अबाउट हाफ सिस्टम लेंगे। ये पिवोटल पॉइंट है P, सो पिवोटल पॉइंट P मास है। देन देयर इज डिफरेंट एंगल, सो हमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है टेंशन आर्म है T1 T2, किस तरह से उसके बाद में इंक्लिनेशन एंगल आर्म है अल्फा, इंक्लिनेशन एंगल लिंक का। राइट, ये सारे सिस्टम, क्योंकि जो भी ये वेरिएबल्स दिए हैं इनके नेमिंग है, एक्सपेरिमेंट में जब हम वेरिएबल्स में जाएंगे तो हमें सेम वेरिएबल मिलेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए। अगेन आप फोर्स बैलेंस लगाएंगे, फोर्स बैलेंस लगा के आपको इक्वेशंस मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब फोर्स बैलेंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली जो स्पीड है और स्लीव हाइट है इसके बीच रिलेशन मिलेगा। तो जो स्पीड है हमारी स्पीड है n, और जो हमारी स्लीव हाइट है h, उसके बीच में हमें रिलेशन मिलेगा कि n स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/h। राइट, सो दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन, एंड दिस इज जब हम उसमें बाकी जो कांस्टेंट है fm और bm जो है ये पोजीशन फिक्स होती है। राइट, fm एंड bm जो पोजीशंस है ये फिक्स होती है। सो हम इसको टेन एंगल से निकाल सकते हैं। सो मास स्प्रिंग का फिक्स होता है, मास स्लीव का फिक्स होता है, 895 फिक्स है, ग्रेविटी फिक्स है, तो ओनली वेरिएबल इज हाइट एंड स्पीड। सो हमें इसके बीच में प्रोपोर्शनलिटी मिल जाएगी, n स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/h। जब हम इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे देन वी हैव टू गो फॉर द प्री टेस्ट। नाउ इट विल आस्क कि पेंडुलम टाइप गवर्नर क्या होगा। So it is a Watt governor. Which of the following governor is not suitable for high speed? Again, Watt governor because it is pendulum type. Which of the following is more appropriate to remove the governor? Engine, no. So we will not able to control the speed limit. Right? Again, so दिस क्विज इज फिक्स टाइप क्वेश्चन। आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जब जिस भी इस तरह का आपको नेक्स्ट पेज नहीं मिलता है डिफरेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे। आप एवरी टाइम यू विल फाइंड द सेम प्री टेस्ट क्वेश्चंस। राइट, अगेन आफ्टर प्री टेस्ट कि हमने थ्योरी वेरीफाई कर ली, वी विल गो फॉर प्रोसीजर।
राइट. सो दिस इज द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो. अगेन हमें इनपुट में देना होगा कि जो हमारे इंजन की स्पीड है एन किस मास से जा रहा है. अगेन जो स्मॉल एम है इस बॉल का मास है, फ्लाई बॉल जो है इसका मास हमें बताना होगा कितना है. अगेन हाइट कितनी है, ये जो एच है ये हमें दिखाना होगा. देन अगेन इन कंट्रोल we can see the graph or we can go through experiment. Here there are two type of experiment. In first experiment हमें इसके पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें इसकी हाइट आइडेंटिफाई करना है. राइट. अगेन जब हमें हाइट आइडेंटिफाई करना है तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/h. राइट. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट. जो दो एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है कैलकुलेशन जिसमें हमें हाइट निकालना है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल से आएगा या आइडेंटिफाई करना है हमें पार्ट ऑफ गवर्नर का. राइट. सो हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ये हमारा वेरिएबल है, मान लीजिए हमने n यहाँ पे कुछ चूज किया. अगेन मास हमने कुछ चूज किया, अकॉर्डिंगली हाइट हमें दिख रही है. right, 210.94. वी कैन सी द ग्राफ कि किस तरह से स्पीड चेंज होने पे हाइट चेंज हो रहा है या हाइट चेंज होने पे स्पीड चेंज हो रही है. बिकॉज हाइट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड n इज द डिपेंडेंट एंड हाइट इज द इंडिपेंडेंट. सो हाइट के साथ में स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है हमें यहाँ पे इसका मिल जाएगा. राइट. दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू. अगेन वी विल गो टू द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. वी विल गो फॉर स्टार्ट. यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है. ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको डिफरेंट चीज मिलेगी. यहाँ पे इसका नाम होगा कि क्या ये पिवोट है, फ्लाईबॉल है, स्प्लिंडल है, एक्सटेंडेड आर्म है. मान लीजिए हमने पिवोट लिखा. अगर ये सही है तो यहाँ पे राइट दिखाएगा, अगर गलत है तो यहाँ पे रेड मार्क लिखाएगा कि आपने जो पार्ट आइडेंटिफाई किया वो गलत है. अगर हमने सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया तो हमें यहाँ पे सही मिल जाएगा. राइट. जब हम सारे इसमें सारे के सारे पार्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई कर देंगे तो सब में हमें ग्रीन टिक मिल जाएगा. इसका मतलब हमने सारे पार्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं. नाउ ये हमें बताता है कि हम गवर्नर में जो पार्ट है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. अगेन हम दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कैलकुलेशन वाला कर सकते हैं. स्टार्ट एक्सपेरिमेंट. नाउ इन्होंने हाइट बताई है 188.425. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड n. हमें वही फॉर्मूला यूज करना होगा प्रोपोर्शनलिटी वाला. राइट. सपोज आई टेक 60. उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ. राइट. ये बता देगा कि नहीं आपका गलत है. करेक्ट आंसर इज 109. सो देयर इज सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन. वी हैव टू अगेन कैलकुलेट. एंड आफ्टर इफ यू पुट करेक्ट आंसर देयर इज अ ग्रीन टिक कि हमारा आंसर जो है सही है. अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो होगा ओके. सो देयर इज अ क्वेश्चन कि जो सेल्फ सो जनरली जो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है वो जनरल थ्योरी के ऊपर होता है. तो आपको जो भी इसकी थ्योरीज में बताया जाता है, थ्योरी सिर्फ पर्टिकुलर इस प्रोवेल गवर्नर के बारे में है. बट जो प्री टेस्ट है वो जनरल गवर्नर के ऊपर पूछे जाएंगे. आपका बेसिक नॉलेज ऑन गवर्नर. सो जहाँ पे भी आप जब भी प्री टेस्ट करोगे तो आपको इस गवर्नर टॉपिक के अंदर जनरली क्या आता है उससे रिलेटेड है इस गवर्नर के, ना कि पर्टिकुलरली प्रोवेल गवर्नर के लिए. जब हम पोस्ट टेस्ट पे जाएंगे तब हमें स्पेसिफिकली प्रोवेल गवर्नर के ऊपर होगा जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके ऊपर. राइट. सो जितने भी एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे भी सेल्फ टेस्ट है ये आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक के जनरल क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, चाहे वो गवर्नर हो या कोई सा भी पर्टिकुलर टॉपिक हो. सो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगा. जब अगर हम बीच में कई बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते हम यहाँ पे मान लीजिए हम भूल गए कि हमें क्या करना है, तो हम प्रोसीजर को पॉपअप कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज वर्क. राइट.
So we can see the procedure. Here, this pop-up menu will show the procedure. Again, जब हम experiment perform कर लेंगे, we have to go for post test. Right, similarly हमारे पास different experiment है. हम एक dynamic analysis of slider crank mechanism भी देख लेते हैं and एक flywheel देख लेते हैं. राइट. सो जब भी हम डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, हमने जो स्टार्टिंग की लैब की एनआईटी कर्नाटका की लैब, जहां हमने सिर्फ मैकेनिज्म मटेरियल देखा था या फिर मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वहां सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एनालिसिस हो रहा था वो वेलोसिटी और पोजीशन एनालिसिस था. बट नाउ वी कैन डू फोर्स एनालिसिस अगेन, क्योंकि हम यहाँ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, डायनेमिक्स में है, तो हम इजीली एक्सप्रेशन पे निकाल लेंगे. तो यहाँ पे आपको पोजीशन डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलेरेशन डायग्राम सब मिलेगा. राइट. Again, we will go for the theory section. Same, we will go for the flywheel. Right. So again, हमारे सबसे पहले थ्योरी पार्ट में आएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसमें हमें क्या क्या करना है. सो सबसे पहले हमारे पास होगा आइडेंटिफाई ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द लिंक्स ऑफ द स्लाइडर क्रैंक. Explain the significance of the parameter and select the variable accordingly. Parameter is velocity, acceleration and force. Variable are link length, mass of link, angular velocity and torque. Calculate the velocity, acceleration and force acting on each link. Examine the calculated values with the simulation result. Evaluate how change in length, angle and driving force result in change of acceleration, velocity and work done by the mechanism. So ये जो डोम लैब है आईआईटी कर्नाटका की, इसको आप मोबाइल पे भी परफॉर्म कर सकते हो. अगेन वी विल गो फॉर द प्री टेस्ट. सो जब भी हम इसको सॉल्व करना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें डिफरेंट जो टॉर्क इक्वेशंस है, बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम से इस मिलेगी. हम टॉर्क इक्वेशंस निकालेंगे, इसके बाद में फोर्स निकालेंगे, पोजीशंस निकालेंगे, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस. राइट. नाउ अगेन, यहाँ क्योंकि हम डायनामिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं. अगेन, सो ये जनरल क्वेश्चन पूछेगा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से पहले कि इंस्टेंटेनियस सेंटर अगर 10 है तो नंबर ऑफ लिंक कितनी होगी, ये हैव टू कैलकुलेट. राइट. So we just choose randomly and see what happens. Right. So again, जो हमारा आंसर गलत आएगा उस पे यहाँ पे रेड लिख के आ जाएगा कि आंसर गलत था, और जो आपका आंसर सही होगा उसमें लिखा आ जाएगा कि सही है. राइट. सो अगेन, यहाँ पे क्योंकि ये फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो दूसरी लैब में था, जहाँ पे आपको सजेशन दिया जाता था कि आपकी थ्योरीज में अगर कम मार्क्स आए तो यू कैन गो अगेन एंड स्टडी द थ्योरीज. सो हियर आप इसे every time you will get the single questions. So I think rather than going for the marks, it is better to go whether you understand the question or not, because this question remains same.
Okay, so now again simulation link will open. Why is taking so much time? Net speed is full. Again, I'm sorry. Generally, net speed is 10 Mbps, but don't know what happened today. It is very slow. Right. So whatever variable we choose, हमें सिंगल स्लाइडर का मैकेनिज्म मिल जाएगा. उसके बाद में टेंजेंशियल कंपोनेंट, कोरिलेसिस कंपोनेंट, हमें सारे कंपोनेंट यहाँ पे एक्सलेशंस के मिलते जाएंगे. राइट. अगेन यहाँ पे जो डिफरेंट वेरिएबल है हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू विल सी जैसे जैसे हम क्रैंक चेंज कर रहे हैं या लेंथ चेंज कर रहे हैं या एंगल चेंज कर रहे हैं थीटा का, तो किस तरह से वेलोसिटी डायग्राम बनेगा, एक्सेलेरेशन डायग्राम मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी हमें दिखते आएगा. अगेन यहाँ पे जो कंपोनेंट है टी इज रिप्रेजेंटिंग टेंजेंशियल, सी इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रीपिटल, एंड अगेन जहाँ कुछ नहीं लिखा है इट इज अ टोटल एक्सलेरेशन. कैपिटल ए जहाँ लिखा है इट इज अ टोटल एक्सलेरेशन. राइट. सो अगेन यहाँ पे आपको जो डिफरेंट लाइंस दिख रही है इट विल आल्सो रिप्रेजेंट. नाउ आफ्टर एक्सलेरेशंस यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएगी किस तरह से कब कब किस समय किस डायरेक्शन में टोटल एक्सलेरेशन जो हमारा एक्टिंग कर रहा है फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ ओमेगा. राइट. सो यहाँ पे जो भी एक्सलेरेशन दिख रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है. अगेन नाउ हम पिन पे फोर्स दे सकते हैं Fx Fy एंड एंगल चेंज करके देख सकते हैं क्या हो रहा है. राइट. सो वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स. हम यहाँ पे फोर्स भी दे सकते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल्स हमारे आर एल थीटा है. सो यहाँ पे आप डायनेमिक एनालिसिस देख पाएंगे इसका क्रैंक का. सो पर्टिकुलरली आप 0 एंगल से 360 डिग्री रोटेट करने तक के किस कब कब कौन कौन सा एक्सेलरेशन कंपोनेंट पे हमारा एक्टिंग कर रहा है, क्रैंक से लेके पिस्टन से लेके कनेक्टिंग रॉड तक के. राइट. सब देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द मास ऑफ द लिंक. And then you can see what is the acceleration. So अगर आपको फोर्स निकालना है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको फोर्स निकालना है, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन मिल चुका है, सो ये जो भी एक्सेलरेशन बता रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, अगर हम उसमें मास से मल्टीप्लाई करें तो मैं उस पे उस समय टोटल जो एक्टिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्टर कंपोनेंट तो नहीं मिलेगा पर हमें टोटल फोर्स उस समय जो एक्टिंग हो रहा है वो मिल जाएगा. राइट. सो दिस इज द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. आप डायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं. अगेन सिमिलरली हर एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे पैटर्न फिक्स है. देयर इज अ एम जो आपको बताएगा एक्सपेरिमेंट में क्या करना है. देन थ्योरी जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक्सपेरिमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बेसिक एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है. देन देयर विल बी प्री टेस्ट. प्री टेस्ट में आपको बताया जाएगा, आपसे आपका नॉलेज असेस किया जाएगा कि विदाउट आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का जनरल नॉलेज, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना आता है. राइट. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द एम. जो प्री टेस्ट है उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक के जनरल नॉलेज के ऊपर है, जो बेसिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर है. देन देयर इज अ प्रोसीजर. प्रोसीजर में आपको बताया जाएगा कि सिमुलेटर को किस तरीके से हमें यूज करना है. देन सिमुलेटर पे हम जाएंगे, सिमुलेशंस करेंगे. सो जो इंट्रोड्यूशन पार्ट है जहाँ पे सिर्फ आपको
इसकी फंक्शनिंग बताना है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जैसा ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ सिर्फ वेरिएबल दिया जाएगा, कंट्रोल दिया जाएगा और वेरिएबल दिया जाएगा। सो डिफरेंट कंट्रोल कर सकते हैं आप, पॉज डिसाइड कर सकते हैं या कंट्रोल के वेरिएबल विंडो को चेंज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमें डिफरेंट एनालिसिस देखना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं विंडो को। ये कंट्रोल बटन है। अगर एक्सपेरिमेंटल है इसके अंदर, वो आपसे चाहता है कि कुछ आइडेंटिफाई करवाना है, तो यहाँ कंट्रोल पैनल में आपको एक्सपेरिमेंट लिखा आएगा, गो टू एक्सपेरिमेंट। यू विल क्लिक ऑन गो टू एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन चूज कि आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है। जैसा हमने कैलकुलेशन और पार्ट आइडेंटिफिकेशन में देखा था, जब आप करेक्टली कर लेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। अगर ये सिर्फ आपको पर्टिकुलर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, सिर्फ आपको फंक्शनिंग बताने के लिए कि किस तरह से अगर हम पर्टिकुलर क्रैंक मैकेनिज्म देखें और उसमें हम देखें कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे वेलोसिटी चेंज आ रही है, किस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस पर किस तरह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है और टोटल एक्सेलरेशन किस तरह से हमें मिल रहा है पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। इस पर हम मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, राइट। सो ये आपका सिमुलेटर बताएगा। देन आफ्टर सिमुलेटर वी हैव पोस्ट टेस्ट कि हमने एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, और अगर हो सकता है कि कई चीजें हमें अच्छे से नहीं आई है तो पोस्ट टेस्ट के मार्क्स अगर हमें कम आते हैं तो वी हैव टू अगेन गो टू एक्सपेरिमेंट अंटिल अनलेस वी आर एबल टू परफॉर्म गुड इन पोस्ट टेस्ट। सो प्री टेस्ट अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इट मींस you don't have some general ideas about that subject, particular topic, but अगर आपके पोस्ट टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे तो इट मींस कि आपने जो एक्सपेरिमेंट का एम है उसको अच्छे से नहीं समझा, क्योंकि पोस्ट टेस्ट डायरेक्टली लिंक टू एम, जबकि प्री टेस्ट हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है। अगेन कुछ लैब्स जो होती है वहां पे इससे वीडियो रेफरेंस देती है कि आपको वर्किंग वीडियोस दिखा सके उस मैकेनिज्म का कि किस तरह का वर्किंग वीडियोस है। अगर नहीं है तो फिर अगेन आपके पास रेफरेंस होगा जिसमें आप कहाँ से ये चीज आई है वो दिखाएगा। अगेन एवरी लैब इज हैव अ फीडबैक कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हो सकता है कि आपको लैब अच्छी लगी हो, या हो सकता है कि आपको लैब नहीं लगी, आप इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस चाहते हैं, तो आप इस फीडबैक में दे सकते हैं ताकि आप वो कर सकें। राइट, सिमिलरली वी हैव फ्लाईव्हील एक्सपेरिमेंट। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसमें जाएं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाके देखें। Again, you have any doubt, you can contact me. और जो लैब वाला जो है मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो यू कैन गेस, आपके पास जो जितनी भी थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशन से रिलेटेड है आपको सीधे मिल जाएगी, और आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं आप कंट्रोल टूल क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें URL अटैच्ड है, सो यू कैन डायरेक्टली रीच देयर। So again, anybody has any doubt, you can ask me. Anyone have any question? If you have any question, you can unmute yourself and you can ask directly from sir. Any question? Hello, good morning, sir. हाँ, good morning. Sir, I am audible. Yeah, you are audible. Sir, my question is, sir, you have told that in formula, damped frequency is equal to omega d upon √1 minus zeta square. Sir, what is zeta? So zeta is the damping coefficient, जो हमारे डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है। जब हम क्या करते हैं, जो डैम्पिंग कोफिशिएंट C होता है और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट CC होता है, इन दोनों का रेशो निकालते हैं तो इट्स कॉल्ड इट जीटा, C/CC। सो क्रिटिकल डैम्पिंग CC जो कि होता है 2√km, एंड डैम्पिंग जो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मान लीजिए उसमें वाइब्रेशंस कोई ऐसी एनर्जी है जो लॉस हो रही है तो देयर इज अ डैम्पर। वो जो डैम्पर का कोफिशिएंट होगा इट इज नोन एज C, वो उसकी प्रॉपर्टी है। बट क्रिटिकल डैम्पिंग जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर किस पर्टिकुलर डैम्पिंग, अगर उसका डैम्पिंग हम कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू पे रख दे तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो कंप्लीटली डाई आउट हो जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग एनी
सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक भी साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा. इट इज नोन एज क्रिटिकल डैम्पिंग. सो इन दोनों का जो रेशो होता है, उसको डैम्पिंग रेशो कहते हैं, दैट इज जीटा. Okay, sir. Sir, sir, Yeah. there are 4 linkage. More than 4 linkage is possible. Yeah, actually there are very mechanisms. So in the mechanism आपने ग्रेसाफ पढ़ा होगा, तो you know that it is come out as a L हमेशा हमारा even होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई है आप, so we have to go even, right? 2L minus 4. So या 2L जब भी हम करते हैं मल्टीप्लाई L, जब भी हम करते हैं तो L even होना चाहिए. So in even ratio 4 bar mechanism, 6 bar mechanism, 8 bar mechanism, you can have it. सो देर इज वेरी, जैसे आप जब ऑटोमोबाइल में जाते हो तो वहां पे आपके 4 बार 6 बार काफी मैकेनिज्म होते हैं जिसको आप यूज करते हैं. सो इट इज पॉसिबल कि आप 6 बार और 8 बार मैकेनिज्म पे जाए, जो कि एक्चुअली आप यूज करते हैं. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ओके. Anybody else? Okay, sir, I think there are no more questions. Thank Okay, you so ma'am. much for sparing your valuable time with us and enlightening us with such an interesting and knowledgeable lecture. And it was really appreciable that you have started from basic of the tome and then you have covered the practical part through virtual lab on several topics. So I hope all the participants are able to understand it easily and they will be surely benefit from it. Thank you so much, sir. Okay, thank you, ma'am. And sorry for the glitches, because I don't know why there is a slow internet today. Otherwise, we have 10 Mbps link, so I don't know. That is okay, sir. We can't have any control over it. Okay, okay. Thank you. Okay, Thank you, thank you, everyone. sir. Okay, sir. Okay, participants, your next session will start from 12:30. So you have to again log in at 12:30. Thank you.